جیسا کہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، بھائی صاحب نے میرے کام میں کہہ دیا ہے کہ وقت تھوڑا ہے، کلام کو جو ہے وہ جلدی وائنڈ اپ کریں، تو کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا جائے۔ مضمون بڑا ہے اور اسی کے دوران جو ہے کوشش کریں گے 20 منٹ میں جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں، لیکن اگر زیادہ ٹائم ہو جائے تو بھائی صاحب معذرت چاہتے ہیں، لیکن یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤں اس خادم کے مطابق جو وہاں کی ترتیب ہے انہیں کی ترتیب کے مطابق چلا جائے، تاکہ ہم نہ اس کلیسیا کو ڈسٹرب کر پائیں اور نہ ہی اس علاقے کو ڈسٹرب کریں۔ تو ہم شکر گزاری کریں گے خداوند کی کہ خداوند نے آج صبح اس کلیسیا میں ہمیں لا کر کھڑا کیا ہے، اور زوردار تالیاں پاک روح کے لیے۔ اپنے آپ کے لیے بھی کہ آپ وقت پر آئے ہیں، اور ہم کراچی سے آپ سے لیٹ آئے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، اور آپ ہم سے پہلے پہنچے ہیں، خدا ہم آپ کو برکت دے۔ یہ یہاں کا نہیں، ہم جس کلیسیا میں بھی چلے جائیں پورے پاکستان کی بات بتا رہے ہیں، ہم وقت کو غنیمت نہیں جانتے، وقت کو غنیمت نہیں جانتے، یعنی کہ وقت کی قدر نہیں کرتے، اور کوشش کرتے ہیں کہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ ساڑھا انتظار کریں، اور اگر آسان لفظوں میں بات کروں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارا انتظار کرے۔ کون؟ خدا ہمارا انتظار کرے، ہم خدا کا انتظار نہ کریں۔ ایمان رکھیں کہ ہم شہر کراچی سے چل کر تقریباً 10:30 کا ٹائم بھائی صاحب نے کہا تھا، اور ہم 10:15 تک یہاں پر پہنچ گئے تھے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے صحیح سلامت اس جگہ پر پہنچایا ہے، اور خدا کے نام کی بڑائی ہو، خدا کے نام کی مدد سرائی کی ہے۔ ہم سب بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس کے، اور خدا کے فضل و کرم سے خدا جو ہے وہ ہمیں اپنے کلام سے عزت اور آبرو سے نوازتا ہے۔ خدا اسی طرح اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے ہمیں استعمال کرے۔ میرے ساتھ کھولیے گا مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت، کیا ہم مطالعہ کریں گے، اور خدا آج اپنے کلام سے ہمیں کیا سکھاتا ہم ضرور مل کر سیکھیں گے۔ بھائی صاحب ٹائم بھی میں نے نوٹ کر لیا، کوشش کروں گا 20 منٹ تک آپ وائنڈ اپ کریں، ٹھیک ہے؟ یوحنا 8 کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت۔ اس نبوت کی کتاب کے پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص خدا کا شکر۔ عزیزو، کلام خدا میں کچھ یوں مرسوم ہے: اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اب یہاں لکھا گیا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، پہلی بات ہے پڑھنے کی، پہلی بات کیا لکھی گئی ہے؟ پڑھنے کی۔ دوسری بات کیا لکھی گئی ہے؟ سننے کی۔ پہلی بات لکھی گئی ہے پڑھنے کی، اور دوسری بات کیا لکھی گئی ہے؟ سننے کی۔ عزیزو، ایمان رکھیں کہ اس کلام خدا کو ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، اور اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ہچکچاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہچکچاتے ہیں، اور ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ڈاواڈول ہوتے ہیں، مطلب بات ترتیب نہیں ہوتے۔ لفظ اس ہے یا اس ہے یا لیے ہیں یا تھے ہیں، وہ لفظ بھی ہم سے نہیں پڑھے جاتے۔ کیوں نہیں پڑھے جاتے؟ کیونکہ ہم ترتیب میں پڑھتے نہیں،
कंटिन्यू इस कलाम को पढ़ते नहीं और रोजाना की तरतीब में इसको हम सुनते भी नहीं, इसलिए वो कलाम हमें याद भी नहीं होता। ईमान रखें कि जो शख्स इस कलाम को पढ़ता है, इस कलाम को खोलता है, जो शख्स इस कलाम को पढ़ता है और क्या करता है, खोलता है। अब खोलने की भी बात है, वो बरकत पाता है। याद रखें कि अगर आप अपने घर से कलाम नहीं लेके आ रहे तो आपके चर्च में अगर कलाम खुदा है तो वहां से ले, उस कलाम को खोलें ताकि आपको पता हो कि ये हवाला भाई साहब ने पढ़ा है, या ये हवाला उस बहन ने पढ़ा है, या ये हवाला उस मुबश्शिर ने पढ़ा है, तो आपको वो हवाला जो है वो याद होगा। इस तरह आप ये सुनेंगे, अगले इतवार आप भूल जाएंगे। ऐसा भाई साहब नहीं, अगले इतवार आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर मिलके खोलेंगे तो ईमान रखें कि आपको क्या होगा, याद होगा। क्या होगा, याद होगा। इसी तरह कलाम खुदा में मत्ती 13 बाब में लिखा गया है कि अगर कोई बादशाही का कलाम ध्यान से नहीं सुनता तो शरीर क्या करेगा, उसको आकर चुराकर ले जाएगा। क्या करेगा, शरीर आकर उसको क्या करेगा, पहले भी जो कलाम है दिल में उसको चुराकर ले जाएगा। अब पहले भी थोड़ा बहुत साढ़े दिल से होएगा, वो कलाम भी क्या करता है, शरीर आकर चुराकर ले जाता है। 13 बाब में लिखा है। अच्छा, बात यह है कि शरीर जो है उस कलाम खुदा को चुराकर ले जाता है। अब जब हम ध्यान से नहीं सुनते, अपने कानों की खुजली के बायस नहीं सुनते, तो खुदा हमारी हिफाजत भी नहीं करता। खुदा हमारी हिफाजत भी नहीं करता। वो कहता है कि ये तो इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। अब मैं कितना इसके अंदर अपना कलाम डालूंगा, कितना इसके अंदर अपना कलाम डालूंगा। अब कलाम डालने का मतलब है कलाम घर कर जाना, कलाम घर कर जाना। कलाम खुदा में शहादत मिलती है कि तुम क्या हो, मेरी मकदस हो। तुम क्या हो, मेरी मकदस हो। तुम दुनिया के नूर हो। जब हम नूर हैं, जब हम खुदा की मकदस हैं, इसका मतलब जब हम उसकी हैकल हैं तो हम हमारे अंदर फिर उसका कलाम भी उतरना चाहिए, उसका कलाम भी उतरना चाहिए, ताकि उस कलाम से हम क्या हो, नूरानी हो। नूरानी का मतलब है कि तारीख पर राज करना। तारीखी पर जब तक हम राज नहीं करते तब तक हमारे अंदर वो कलाम सादर नहीं फरमाया जाता, वो कलाम हम पर सादर नहीं फरमाया जाता। ईमान रखे कि जिसके अंदर कलाम होगा वो ही तारीखी पर क्या करेगा, राज करेगा। गालिब है, बिल्कुल बेशक सही फरमाया। वही क्या करेगा, तारीखी पर राज करेगा और क्या आएगा, गालिब आएगा। लेकिन बशर्ते कि आपके अंदर कलाम उतरे, बशर्ते कि वो कलाम आप क्या करें, ध्यान से सुने। ऐसा ना हो कि कानों की खुजली के बायस, क्यों भाई साहब, किसके बायस, कानों की खुजली के बायस वो कलाम ना सुने। लिखा गया कि जब कलाम हमारे अंदर घर करता है तो 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाता है। कितने गुना, 100 गुना फल लाता है। और जो बेफल दरख्त है उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। बेफल दरख्तों को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ईमान रखें कि अगर आप फलदार बनना चाहते हैं तो फिर जरूर है कि कलाम खुदा को पढ़ें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। और लिखा है सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या होंगे, मुबारक होंगे, क्योंकि वक्त नजदीक है, वक्त नजदीक है। अब तीसरी बात क्या है, सुनने वाले और अमल करने वाले। अमल का क्या है, जब हम सुनते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब कि
रद्द अमल करते हैं। इस कलाम को हमने सुना, इस कलाम को हमने अपने दिल में बिठाया, इस कलाम को अब अपने घर में उतारना है। क्या करना है? अपने घर में उतारना है, अपनी फैमिली में दुआ करनी है और कहना है कि अगर माँ अनपढ़ है, बाप अनपढ़ है, बहन अनपढ़ है या भाई अनपढ़ है, उसको इस कलाम को सिखाना है। उसको क्या करना है? इस कलाम को सिखाना है ताकि वो सीखे और इस कलाम पर मुकम्मल तवज्जो फरमाए और कहे कि हमने इस कलाम को सुन लिया है, अब अमल करने का वक्त है। अब क्या है? अमल करने का वक्त है। अब क्या है? अमल करने का वक्त है। और अमल हम तब ही कर सकते हैं जब हम यहां से सुनेंगे, हैकल से पढ़ेंगे और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना शुरू करेंगे, उस कलाम को अपने घर में उतारना शुरू कर देंगे। और फिर एक बात याद रखिए, लिखा गया है कि वक्त नजदीक है। लिखा गया है कि जो सुनते हैं वो क्या होंगे? मुबारक होंगे। लफ्ज क्या लिखा गया है? मुबारक होंगे। मुबारक कौन होंगे? मुबारक जिसके अंदर नजासत नहीं है। मुबारक वो होगा जो सादिक है। मुबारक वो होगा जिसके अंदर खुदा यीशु मसीह उतरा हुआ है। हालेलुया। मुबारक वो है जो खुदा यीशु मसीह की सलीब अपने कांधे पर लेता है। मुबारक वो है जो खुदा यीशु मसीह की सलीब अपने कांधे पर लेता है। लिखा गया है कि जो कोई उसकी सलीब अपने कांधे पे लेगा और उसके पीछे चलेगा, क्या करेगा? उसके पीछे चलेगा, वो मुबारक होगा। और दिमाग रखें, लिखा गया है कि वक्त नजदीक है। वक्त नजदीक है और आज आखिरी नस्ल का जो है फूंका जाएगा और खुदा यीशु मसीह अपने जलाल में आएगा और आखिरी वक्त की बात हो रही, वक्त नजदीक है। ठीक है। अब जो अमल करने वाला शख्स होगा, जो मुबारक होगा, जो सादिक होगा, जो रासबाज होगा, वो ही खरबा में खुलकर यीशु मसीह का इस्तेमाल कर सकता है। वही कर सकता है ना भाई? वही कर सकता है। अगर हमारे दिल में किसी के लिए कोई हसद हो, अगर कोई गुस्सा हो, अगर किसी के लिए नफरत हो, हमने कलाम में तो ये सीखा है कि हम हलीम बने, हम फरोतन बने। यीशु मसीह तो यही कहता है, आए बोझ के थके मांदे लोगों, मेरे पास हो, मैं क्या करता हूं? तुम्हें आराम देता हूं। क्या करता हूं? आराम देता हूं। सही है, जिंदगी का पानी भी उसने सही कहा। यीशु मसीह जिंदगी का पानी, जो कोई वो पानी पी लेता है उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। इससे मिलती जुलती बात करता चलता हूँ। चलो मैम ने एक गलत टॉपिक बताया है, लेकिन उनकी बात ही ताकीद करते हैं, तवज्जो बढ़ाते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू खुदा के कलाम को जानता, अगर तू खुदा के कलाम को जानता तो शैतान कहता है कि इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह कहता है कि जरूरी नहीं कि इंसान रोटी से ही जीता है, बल्कि हर उस बात से जो बाप के मुंह से निकली। हालेलुया। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने इस बात को कहा है, बेशक खुदा यीशु मसीह जिंदगी का पानी है, वो जिंदगी की रोटी है। और जो कोई खुदा यीशु मसीह को पहन लेता है उसके अंदर कोई कमी रहती है, उसके अंदर कोई कमी रहती नहीं है। आज हमारा टॉपिक है इस किताब को पढ़ने वाला, इस किताब को पढ़ने वाला और इसको सुनने वाला और इस पे ईमान रखने वाला और अमल करने वाला मुबारक होगा। कौन होगा? मुबारक होगा। और मुबारक वही होगा जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखता है। एक हवाला और देखते हैं, 10 बाब उसकी नमाज देखते हैं, काशवादी। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे। उसने मुझसे
मुझसे कहा कि ले इसे खो ले, खा ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी, मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। क्या होगा? वो कहता है कि अब फरिश्ता को ये बातें कह रहा है, और फरिश्ता जो है वो कह रहा है कि तब वो क्या होगा, यूहन्ना आरफ जो है वो कह रहा है कि तब फरिश्ता ने पास जाकर ये कहा कि छोटी किताब, कौन सी किताब? छोटी किताब। अब छोटी किताब कौन सी है? उसने कहा मुझसे कहा कि ले और इसे खा ले, ये तेरा पेट क्या करेगी? कड़वा करेगी। कड़वा क्यों करेगी? कड़वा क्यों करेगी? क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई है। खुदा का कलाम जो है वो क्या है? सच्चाई है। और जब सच्चाई खुलती है तो ईमान रखें कि वो कड़वी लगती। क्या लगती है? कड़वी लगती। आप हमेशा ये बात सुनते होंगे, खुदा के खादमों के साथ ये बीतती है, खुदा के खादमों को ये बात अक्सर सुनने को मिलती है कि भाई साहब तुसी कलाम साढ़े ही कीता और बड़ा सख्त कीता। हालांकि ऐसा नहीं होता, हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि कलाम सच्चाई है, और सच्चाई जो है इब्लीस के अंदर उतरती है और इब्लीस को क्या करती है? कड़वा कर देती है। और हम इस कलाम को जब खाते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है? शहद की मानिंद हो जाती है। जब ये कलाम हमारे दिलों में उतरता है, हमारे दिलों में राज करता है, तो फिर ये क्या होती है? शहद की मानिंद होती है। अक्सर आप कलाम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इस कलाम को हमने पहले भी सुना है, लेकिन फिर आपको नई ताजगी मिलती है, फिर आपको नई ताजगी मिलती है, फिर खादम को भी नई ताजगी मिलती है। उस आयत को फिर पढ़ेगा तो फिर नई बात सीखने को मिलेगी, फिर उसको पढ़ेगा तो फिर एक नई बात सीखने को मिलेगी, एक नया भेद खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि मुबारक शख्स जो है, जो राज़बाज जो शख्स है, जो किताब पढ़ेगा उसका कड़वापन चला जाएगा। क्योंकि ये किताब जो है वो हमारे जब दिलों में राज करेगी तो हमारे लिए शहद की मानंद है, मीठी हो जाएगी, हमारा कड़वापन जो है वो चला जाएगा। ईमान रखने के कड़वापन उसी को लगेगा जिसके अंदर शरीर समाया होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कड़वापन उसी को लगेगा जिसके अंदर शरीर समाया होगा। अब खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ जो है वो रोया में है, और फरिश्ता जो है वो कह रहा है कि अगर तू छोटी किताब खोलेगा, छोटी किताब, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलकर वो कहता है कि तुझे और भी किताबें खोलने को मिलेगी, ठीक है। उसकी तरफ नहीं जाते, हमारा टॉपिक बड़ा हो जाएगा। बनाए आलम की किताब का जिक्र है, किताबे हयात का जिक्र है, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक को हम छोड़ देते, वो आलमे वाला की बातें। लिखा गया है कि अगर तू इस कलाम को पढ़ेगा तो क्या होगा? ये तेरे क्या करेगी? तुझे कड़वा तो करेगी, लेकिन जब तू इसको पढ़ लेगा, खा लेगा, अपने दिल में घर कर लेगा, तो फिर ये क्या होगी? शहद की मानिंद हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीठी हो जाएगी। ईसाया नबी का सहीफा में याद दिलाता है, और जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा गया शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, ना तू दाएं मुड़ और ना बाएं मुड़। अब शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। शरीयत क्या है? जब हम फजल में दाखिल हो गए हैं, अहद जदीद को हमने खत्म कर लिया है, अहद जदीद में हम दाखिल हो गए हैं, अब प्राइमरी को खत्म कर कर अब हाई स्कूल में हम दाखिल हो चुके हैं, तो फिर हमारे साथ फजल है। अब शरीयत हमारे साथ जो है वो फजल की शरीयत है। हालेलुया। अब शरीयत हमारे पास ये नहीं कि हम बड़ी बड़ी दाढ़ी रखें, हम जो है वो फकीयों फरीसियों की तरह, इस यहूदियों की तरह लंबे लंबे चोगे पहने, ठीक है। अब हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, बल्कि हमारे पास फजल की शरीयत है। और खुदा यीशु मसीह कहता है कि तुम फजल में दाखिल हो चुके हो, तुम शाही कहनों का फिरका हो, तुम मेरे बेटे और
रूहानियत में दाखिल होना है और इस कलाम को पढ़ते और सुनते और समझते रहना है, ताकि खुदा अपने कलाम के वसीला से बढ़ोतरी बख्शे और इसी तरह हम कलाम की मुनादी करते रहें और कलाम की बढ़ियाई करते रहें। छोटी सी एक एग्जांपल बताऊंगा। डॉक्टर बिली ग्राम का सबने नाम सुना है। उनका एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो वहां लिखा गया है कि वो बयान करते हैं कि जब मैं कलाम खुदा सुना रहा था क्रिसमस वाले दिन, तो बहुत सर्दी थी। तो अब डॉक्टर बिली ग्राम ऐसे खादम गुजरे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कलीसिया, इतनी बड़ी मुनादी की है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक नामवर खादम, एक बुजुर्ग खादम, लेकिन घमंड और गुरूर उनके अंदर। हालेलुया। हम भी छोटे हैं, अदने हैं, और हम भी कहते हैं कि हमारे अंदर गुरूर ना पैदा हो। जब हमारे अंदर गुरूर पैदा हो जाता है, डॉक्टर बिली ग्राम की तरफ चलते हैं। उनका जो आर्टिकल पढ़ा है, कहता है कि सख्त सर्दी का मौसम है और 25 दिसंबर की रात है, और एक फैमिली जो है वो मेरी दावत करती है, मुझे फोर्स करती है, और मैं उनको रिफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन उनकी चाहत है, कलीसिया की चाहत होती है। वो खादमों की दावत करते हैं, खादम उनके घर में उतरते हैं, उनके लिए बरकत चाहते हैं। अब डॉक्टर शॉर्ट कर देता हूँ, टाइम हमारे पास कम। अब डॉक्टर बिली ग्राम उस घर में जाते हैं, उनके लिए बरकत चाहते हैं, डाइनिंग टेबल सज जाता है। अब वो मियां बीवी और उनके बच्चे जो है उस डाइनिंग टेबल को सजाते हैं और खाना रखते हैं, खाना परोसते हैं, और खाना जब खाते हैं तो वहाँ बाइबल मुकद्दस होती है। याद रखें कि जो भी खादम होता है वो कोशिश करता है कि उस घर की बरकत चाहूं और मैं उसमें दुआ करूं, उस घर के लिए कलाम पढ़ूं। तो डॉक्टर बिली ग्राम ने भी कलाम को पढ़ा, और उस बहन ने भी उस कलाम को जो है ऐसे रख दिया उस टेबल पर। पढ़ने के बाद अब उन्होंने खाना जो है वो सर्व किया। अब डॉक्टर बिली ग्राम और वो फैमिली खाना खा रही है। बहन गई किचन में मीठा लेने के लिए। अब डॉक्टर बिली ग्राम ने क्या किया, उसकी बाइबल को खोला और उसके अंदर जो है एक चम्मच रख दिया। एक चम्मच उस बाइबल में रख दिया, बाइबल कवर में रख दिया, और उसको जिप को बंद कर दिया, और बाइबल जो उस बहन की जो है उसके टेबल पर, उस बाइबल को क्या किया, बंद करके उस टेबल पर रख दी। और डॉक्टर बिली ग्राम की बाइबल यहाँ पड़ी है, और उन्होंने मीठा खाया और दुआ की, शुक्रगुजारी की, उस घर को बरकत दी और रवाना अपने घर को चले गए। अब वो चम्मच जो था वो सोने का था, वो बड़ी अमीर फैमिली थी। अब ईमान रखें कि उस बहन को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा चम्मच चोरी हो गया, मेरा तो सेट बर्बाद हो गया, मेरा चम्मच चोरी हो गया, मेरा सेट बर्बाद हो गया। और वो अपने मियां के साथ कुड़कुड़ाने लग गई कि भाई आया तो आया, गया कहां, यहाँ तो बिली ग्राम साहब आए। अब उनको बोल भी नहीं सकते, क्यों बोलेंगे, क्योंकि अजीम खादम है और उनकी कलीसिया ही लाखों में कलीसिया है, और उनकी तालीम इतनी बड़ी तालीम है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब कश्मकश में है, कश्मकश में है, लेकिन पूछते नहीं। वो बहन कहती है कि मेरा चम्मच, अमिया कहता है कि मुझे क्या पता, मैं तुझे बनवा दूंगा। लेकिन अब फिर एक साल गुजरता है और फिर वो उस घर में जो है वो दावत के लिए उनको बुलाया जाता है, और डॉक्टर बिली ग्राम हस्बे ममूल को मना करते हैं, कहते हैं कि मुझे दूसरी फैमिली के घर जाना है। और अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि फिर मैं वहीं गया, वही जो है बात शुरू हुई, और उन्होंने कहा भाई साहब पिछले साल साढ़ा ना चम्मच ना गैप हो गया, पता नहीं बच्चे ने कितने सोच होता। अब हम इंसान है ना, हमें बात को घुमा कर उस बात पर लेकर आने का पता है, ठीक है। कभी कभी हम डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जो है वो बात करते हैं। अब डॉक्टर बिली ग्राम ने सोचा कि मैंने भी उस बहन को जो है याद दिलाना था और बोलना था कि इस कलाम को आपने
पूरा 25 दिसंबर हो गया, 1 साल हो गया, कलाम को खोला नहीं, कलाम को खोला नहीं है। उन्होंने उस बाइबल मुकद्दस को खोला और चम्मच निकाल के दे दिया। अब याद रखें कि वो बहन बहुत शर्मिंदा हुई, उनका हस्बैंड भी शर्मिंदा हुआ। इवन देन के बहन ने तो कलाम खोला नहीं, अब उनके हस्बैंड ने भी कलाम नहीं खोला। पूरा 1 साल, कितने साल? 1 साल, पूरा 1 साल। याद रखें इस किताब को हमें पढ़ना है, इस किताब को हमें समझना है। ऐसा ना हो कि पादरी रफीक साहब आए और आपका भी चमन चोरी हो जाए, आपका भी सेट जो है वो खराब हो जाए। तो कोशिश करें इस किताब को पढ़ा करें और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करें और साधकों जैसी और खुदावन के लिए मुबारक ठहरे, क्योंकि वक्त नजदीक है, वक्त को गनीमत जानो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए हमारे पास और हम अपने कामों में लग जाए, फिर ऐसा होगा कि एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। तो आज के कलाम से खुदा आपको और मुझे बरकत बख्शे। आए हम कलाम खुदा के लिए दुआ करें और खुदा के नाम की बजाय करें।